Very important head over. देखिए, you will definitely surely get at least an 8-mark question from this head. 8 marks means that it may be a standalone question, या तो वो इकलौता question salary से होगा, or it will be mixed with some other head, जहाँ पे you are asked to determine the residential status as well as the salary part of an employee. Right? So we'll revise the whole chapter में, एक बार quick revision करेंगे. सारी चीजें जो हमने अभी तक सैलरी में पढ़ी हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी is taxable only in the hands of a person who is considered to be an employee of the other person. याद है आपको? So there has to be what? Employer-employee relationship. If there is employer-employee relationship, we can simply state that there would be income taxable in the hands of employer. क्या ये बात सही है? Is this thing correct? कि अगर employer-employee relationship है, तो आप उसकी इनकम टैक्सेबल कर दोगे? क्या चीज जरूरी है? Control. There should be control. I may be able to call a person my employee, but I may not have control on him. अगर मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, in that case, that thing can be taxable under the head salary. फिर मैं जो भी उसे पे करता हूँ, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, किसी और हेड में टैक्सेबल होगा. मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे. Under the examples we had understood that let's say I have been hired or my CA firm have been hired by some other people for their auditing. तो मेरी external firm है. अगर मेरी external firm को hire करा हुआ है किसी ने, I am not the person of that employee. I am not the employee of that person. Are you able to understand? तो जो भी मुझे remuneration मिलेगा, वो salary में taxable नहीं होगा. I am doing my own business. You are doing your own business. आपने मुझे hire करा है for purposes of doing audit. तो that will be my business income. That won't be my salary income. समझ पा रहे हैं आप लोगों को? So this is one aspect जहाँ पे employer-employee relationship के साथ साथ हम लोग क्या चेक करते हैं? There should be control of employer over employee. Other than that, there are certain exceptions जहाँ पे हम लोग employer-employee relationship establish कर भी ले, तो भी क्या होता है? Salary में taxable नहीं होता. What are those exceptions? First exception क्या है? Partner होती है. That is taxable under the head profits and gains from business and profession. In short, PGBP. Second exception बताइए. डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय. कोई डायरेक्टर है फर्म का जिनको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैटेगराइज करते हो, या जो डायरेक्टर्स का चैप्टर आप लोग सीए लॉ में पढ़ते हो, यू विल स्टडी इन कंपनी लॉ द चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स. सो डायरेक्टर्स को जैसे भी हायर करा जाता है, दैट इंटायर एस्पेक्ट इज वेदर अ डायरेक्टर इज ऑन सैलरी बेसिस और नॉन सैलरी बेसिस. आई एज अ पर्सन हैपन टू बी, मैं डायरेक्टर हूं 3 कंपनीज में. मिस्टर नारायण मूर्ति, आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस के चेयरमैन है. ही इज अ डायरेक्टर इन 30 कंपनीज. वो 30 कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 30 कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं. ही इज अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट इन हिज ओन फर्म और इन ओन बिजनेस, बट उनको गेस्ट डायरेक्टर बनाया जाता है. तो उनको जो भी पैसा उस नाम का मिलता है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. थर्ड एक्सेप्शन क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए. मैंने आपको रीजन समझाया था. कोई गवर्नमेंट, दे आर एम्प्लॉयड बाय पीपल. So whatever we are giving as taxes, उस taxes में से पैसा निकाल के उनको salaries पे होती हैं. It will not be taxable over here. Other sources में taxable होगा. चौथा exception क्या है? Honorarium for delivering guest lecturer. इसका example दिया था आपको SRCC का, याद आ रहा हो आपको. And fifth is right, yes, checking papers. It is not a full-time employment. और ना ही उसमें control है. So these are the 5 exceptions. इनके सिवा कोई भी केस हो, that will be जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखा जाएगा. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी है, कंट्रोल भी है, तो ऑटोमेटिकली वॉट एवर अमाउंट द एम्प्लॉयर इज पेइंग टू द एम्प्लॉय, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. क्या यहां तक बात आप लोगों को क्लियर है? याद रखोगे, इन केस क्वेश्चन में लिखा हो एक्स वाई और वॉट एवर एक्स वाई जी, कोई भी नाम लिखा हो, कॉमा एंड अ गेस्ट लेक्चरर, उसके आगे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आपको पता है क्या करना है. Whatever he gets वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा. टैक्सेबल जरूर होगा, लेकिन सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, कहीं और टैक्सेबल होगा. प्लीज रिमेंबर दिस, भूलोगे तो नहीं. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. ये तो पहला एस्पेक्ट हुआ जहां पे हम डिटरमिन करते हैं कि यहां टैक्सेबल है या नहीं है. सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाट इज इन एडिशन टू सैलरी दैट यू गेट. तो एडिशन टू सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी. एक कॉम्पोनेंट बेसिक तो सबको मिलता है. Everybody is getting basic salary. I'm getting basic salary. My partners are getting basic salary. Everybody, all my staff is getting basic salary. Basic salary तो everybody gets. What is in addition to basic salary that you get? किसको in addition कुछ मिलता है? Basic salary के ऊपर क्या मिलता है?
एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैलरी और इनकम टैक्स एक्ट हम लोग तीन चीजों का कंप्यूटेशन करते हैं. फर्स्ट इज अलाउंसेस, सेकंड क्या है, एंड थर्ड इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अलाउंसेस अपने दिमाग में कैटेगराइजेशन करिए, तीन हेड्स है. फर्स्ट हेड इज अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जो पहला हेड है या पहला जो कैटेगरी है अलाउंसेस का, उसमें यह देखा जाता है वट एवर अमाउंट इज योर पर्सनल और ऑफिशियल एक्सपेंडिचर जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स किया है या आपको दिया है मीट करने के लिए. वट एवर यू हैव बीन गिवन, आपको जो कुछ भी दिया गया है, दैट वाज ईदर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, या आपका पर्सनल खर्चा था या ऑफिशियल खर्चा था जो ऑफिस के काम की वजह से हुआ है. सो इन दोनों चीजों में से हम लोग देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अलाउ हो रही है. अलाउंस मतलब दिस इज अलाउड टू यू. So allowances are of two types. The first type of allowance is specified allowance and the second is limit based allowance. Specified allowances are those allowances where how do we make things taxable? कैसे taxable करा जाता है? Amount received or spent whichever is less. Simple है. Amount received कितना है, spent कितना है, क्योंकि जितना खर्च हो गया वो तो taxable नहीं करोगे. इन केस कुछ बच जाता है वो taxable होगा. अगर रिसीव हुआ, जितना रिसीव हुआ पूरा खर्च हो गया, so zero, nil taxable. क्लियर है यहां तक? सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफाइड अलाउंस. स्पेसिफाइड अलाउंसेस आर ऑफ 6 टाइप्स. कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है? ट्रैवलिंग अलाउंस. ट्रैवलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंस. डे वन से कह रहा हूं, यहां पे आप कंफ्यूज हो गए और मैं फिर बता रहा हूं, गलती करके मानोगे, इसमें गलती मत करना. ट्रैवलिंग, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट आर ऑल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. ट्रैवलिंग और कन्वेंस स्पेसिफाइड में आता है. ट्रांसपोर्ट कहां पे आता है? लिमिट बेस्ड. सो ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हम लोग यूज करते हैं. भाई हम लोग क्या कहते हैं घर पे? दैट वी नीड टू टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रीच ऑफिस और वी नीड टू हैव पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन टू रीच ऑफिस. दैट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर. पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन के नाम का होगा, वो किस में आएगा? लिमिट बेस्ड में. और ट्रैवलिंग और कन्वेंस आएगा स्पेसिफाइड अलाउंस में. सो ट्रैवलिंग और कन्वेंस दो तरह के अलाउंसेस हैं. इन दोनों का सेपरेटली क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? कन्वेंस का मतलब क्या हुआ? Within the city for official purpose. I pay to my articles or my staff कि आप जाओ इस कंपनी का ऑडिट करके आओ. That is conveyance. और ट्रैवलिंग क्या होगा? आउट ऑफ स्टेशन. आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवलिंग जो भी है, आउट ऑफ स्टेशन. तीसरा अलाउंस कौन सा है? डेली अलाउंस. इन ऑर्डर टू मीट डेली एक्सपेंडिचर, somebody is going out station, somebody is going for an audit, डेली अलाउंस. चौथा बताओ? हेल्पर अलाउंस. इफ यू हायर अ हेल्पर तो उसका अलाउंस मिलता है. पांचवा कौन सा है? एंड फिर सिक्स्थ इज uniform allowance. So all these allowances are receivable by people who are mainly for official purposes, mainly going for official purposes. चाहे वो helper हो, uniform office में ही पहनी जाती है. So all these are allowances. इसके बाद आते हैं limit based allowances. एक और इकलौती चीज जो आप याद रखोगे apart from limits is that actual expenditure is ignored in all cases. Actual expenditure को consider नहीं करना है. Reason being हमारे पास limit दी हुई है. स्पेसिफाइड अलाउंस में लिमिट थी नहीं, तो वहां पे एक्चुअल भी देखते थे कितना मिला, कितना एक्चुअल खर्च हुआ, दोनों को कंपेयर कर लिया. यहां पे हमारे पास लिमिट है. सो वी हैव लिमिट एंड वी हैव द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो दो चीजें कंपेयर करेंगे. वी वुड नॉट लुक एट थर्ड थिंग व्हिच इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर. एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका 5,000 रुपए खर्च हुआ हो फीस में, 10,000 हुआ हो, 50,000 हुआ हो, वी आर नॉट बॉदर्ड. हमारे पास 100 रुपए पर मंथ की लिमिट है और उसके सिवा जितना एम्प्लॉयर से मिला हुआ है वो दोनों चीजें हैं. सो वी विल कंपेयर टू थिंग्स. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इग्नोर्ड इन ऑल केसेस. फर्स्ट अलाउंस वाज Children education allowance. Children education allowance means that your children have to be in full time education. इसमें कोचिंग की एजुकेशन नहीं आती है. सपोज आप कोचिंग की एजुकेशन में जा रहे हो, वो चीज नहीं आएगी. इट विल बी फुल टाइम एजुकेशन वेयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. सो उस केस में व्हाट इज द एग्जेम्पशन दैट इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट? 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. याद आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज गिवन टू दोज पेरेंट्स और दोज एम्प्लॉइज जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते होंगे. कितना है? 300 per month per child up to a maximum of 2 children. So can the employer pay for 5 children of 1 employee? Yes. कौन बोल रहा है नो? अरे क्यों नहीं पे कर सकता? सोचो, एक एम्प्लॉई है, उसके 5 बच्चे हैं, पांचों हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो ही इज एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो भी मिलेगा उन्हें, और उन्हें हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी मिलेगा. तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप प्लीज अलाउंसेस दीजिए. उसका एम्प्लॉयर भी दे देता है उसे सारे बच्चों का अलाउंस. 5 बच्चों का अलाउंस दे दिया. तो एम्प्लॉयर को किसी ने रोका हुआ है? एम्प्लॉयर को कोई रोक सकता है? एग्जेम्पशन कितनों का मिलेगा? ये मैं समझा के थक जाता हूं स्टूडेंट्स को. प्लीज, you will be allowed every kind of allowance which is given as per income tax act, but at the same time आप जो दे रहे हो या एम्प्लॉयर से आपको जो मिल रहा है
उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एम्प्लॉयर आपको जितना मर्जी पैसा दे, एम्प्लॉयर 10 बच्चों का पैसा दे, लेकिन यू विल गेट अ डिडक्शन और एग्जेम्पशन ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन। हमने क्वेश्चंस करे थे, अगर आपको याद आ रहा हो, 3 बच्चे भी हैं तो तीनों बच्चों का अलाउंस मिलता है। सो यू विल गेट डिडक्शन ऑफ ओनली 2 चिल्ड्रन, नॉट द 3rd चाइल्ड। एम्प्लॉयर में गिव एनीथिंग, एम्प्लॉयर के ऊपर थोड़ी कंट्रोल है किसी का, एम्प्लॉयर को थोड़ी कोई कंट्रोल कर रहा है, बट डिडक्शन कितने का मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चों का मिलेगा, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन हो, हॉस्टल एक्सपेंडिचर हो। तीसरा अलाउंस बताओ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब है फ्रॉम वेयर टू वेयर, रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑफिस। यहां तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हम लोग छठी बारी अलाउंसेस डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ यू शुडंट हैव कंफ्यूजन दैट दिस ट्रांसपोर्ट इज अ लिमिट बेस्ड अलाउंस, और ये है घर से ऑफिस तक का, ऑफिस के बाद तक के स्पेसिफाइड अलाउंसेस हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की लिमिट बताओ। 1600 per month for normal people, 3200 per month for handicapped and blind or handicapped or disabled employees. These limits have been revised, आने के चांसेस ज्यादा है। ये फाइनेंस एक्ट 2015 की अमेंडमेंट है और आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 2015 अप्लाई होता है। इसके बाद हमने पढ़ा that there is another allowance by the name of allowances for transportation employees. Transportation employees are those people who are for the purpose of transportation. ट्रक ड्राइवर्स और ड्राइवर्स जो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, 3-3 दिन, 4-4, एक हफ्ता वो ट्रैवल ही करते रहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, अगर ज्योग्राफिकली उस कंट्री को देखा जाए तो हर रिसोर्स हर जगह नहीं मिलता। अगर हमें एप्पल्स चाहिए, सेब खाने, तो सेब या तो शिमला से आएंगे या कश्मीर से आएंगे, तो वहां से कोई लाने के लिए चाहिए, राइट? पपीता खाया है आप लोगों ने? पपीता कहां से आता है? महाराष्ट्र से आता है। लीची महाराष्ट्र से आती है, ठीक है? वो कोकोनट वाटर, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, नारियल पानी, दैट कम्स फ्रॉम बिहार, दैट कम्स फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। अब रिसोर्सेज ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ दिल्ली में मिलता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां से यहां तक लाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज। अगर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज यहां तक लेकर आएंगे, उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल देखो कितना होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल इतना ज्यादा है, उनका नेचर ऑफ वर्क इतना ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको देना पड़ता है अलाउंस, उनको ट्रैवल इतना करना पड़ता है। हेंस इनकम टैक्स एक्ट गिव्स देम डिडक्शन। तो कितना डिडक्शन मिलता है उन्हें? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 whichever is less। याद आ रहा है आप लोगों को? 10,000 और 70%। तो ये मैक्सिमम डिडक्शन है। काफी एग्जाम्पशन मिल रहा है, सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके ऑन द जॉब की वजह से है, वो जॉब के नेचर की वजह से है। अगर जॉब का नेचर वैसा नहीं होता तो वो नहीं करते उस चीज को। सो दीज वर द अलाउंसेस दैट वी हैव रेड। इसके बाद एक अलाउंस हमने और पढ़ा था, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। 1013A यही सेक्शन था, HRA, house rent allowance. So house rent allowance is payable for those employees which take up employment on the recommendation of the employer, or which take up employment only for doing employment. लेकिन इसका रीजन यहां पे आके नहीं रुकता है। आप एम्प्लॉयमेंट में हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इन एम्प्लॉयमेंट वेदर यू हैव योर ओन हाउस और यू आर लिविंग इन एन रेंटेड अकोमोडेशन, इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether your employer is giving you rent or not, उस चीज से फर्क पड़ता है। तो if you are being given rent by the employer, तो उस रेंट को हम लोग रेंट अलाउंस में कंसिडर करते हैं। इट इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। सो हाउस रेंट अलाउंस और HRA, इट मींस दैट इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं अपने घर की बजाय आई एम लिविंग इन गुड़गांव, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है तो मैंने घर गुड़गांव में ले रखा है, माई एम्प्लॉयर इज गिविंग मी हाउस रेंट, तो वो HRA की कैटेगरी में आएगा। If it is coming in the HRA category, तो I will be eligible for exemption as per the HRA exemption section 10 subsection 13A. So we categorize both the provisions on 2 bases. पहला basis क्या है? In case of 4 cities, DMKC, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। याद आ रहा है आप लोगों को? लिमिट्स बताना शुरू करो। फर्स्ट लिमिट क्या है? Actual expenditure received, actual allowance received. Second is rent paid minus 10% of salary. Third क्या है? 50% of salary, where salary stands for basic plus DA only under terms plus commission based on turnover. अगर तो ये सारी चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिकली he will get the least of जो भी तीनों exemptions मिलते हैं। If it is a non-DMKC city तो कितना होगा? 40% ऑफ सैलरी, सेम ट्रीटमेंट बट फर्क होगी लिमिट का, 50% की जगह 40% हो जाएगा। सो और सैलरी का मतलब भी उसमें सेम रहेगा। सो दिस वाज द HRA एग्जेम्पशन। इफ अ पर्सन हैज हिज ओन हाउस, उसका अपना घर है, वो अपने घर में रह रहा है और फिर भी उसको HRA मिल रहा है, तो क्या करेंगे HRA का ट्रीटमेंट? फुली टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल होगा। पार्टली वो अपने घर में रहा, पार्टली रेंटेड अकोमोडेशन में रहा, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे?
जितना अपने घर में रहा वो फुली टैक्सेबल है, और जितना वहां पे रहा उतने महीनों का कैलकुलेट करके, सिर्फ और सिर्फ उतने मंथ्स का कैलकुलेट करके आप लिमिट्स लगाओगे और टैक्सेबिलिटी दिखाओगे उसमें. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एचआरए. एचआरए की मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एग्जेम्पशन तो निकाल देंगे लेकिन उसको माइनस करके टैक्सेबिलिटी नहीं दिखाएंगे. आपका ग्रास रूट ग्राउंड रूट ये है, मास्टर रूल है आप लोगों के लिए, दैट यू हैव टू कैलकुलेट बोथ. चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आप दोनों चीजें लिखकर आओगे. आप लिखोगे बड़ा बड़ा अमाउंट एग्जेम्प्ट जो कि आपकी लिमिट से आ जाएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और उसको माइनस करके टैक्सेबल लिमिट में से आप लिखोगे कि इतना टैक्सेबल अमाउंट है. कुछ नहीं जा रहा लिखने में, एक माइनस ही करना है एक्स्ट्रा, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो. यू विल राइट इट, क्योंकि जब पूछा होगा और करना भूल जाओगे तो मार्क्स कटेंगे, और बहुत खलता है जब ऐसे मार्क्स कटते हैं. सो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा. इसके बाद हम लोग आए थे अदर टाइप ऑफ अलाउंसेस पे जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं. डीएनएस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, कोई सर्वेंट अलाउंस, जितने मर्जी अलाउंसेस हो किसी भी और नाम से, दे विल बी फुली टैक्सेबल. याद आ रहा है आप लोगों को? लिमिट बेस्ड अलाउंसेस हम लोग कर चुके हैं. इसके बाद हम लोग आए परक्विजिट्स पे. परक्विजिट्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर रिसीवेबल इन एडिशन टू समथिंग. इन एडिशन टू समथिंग मतलब सम बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन ओवर एंड अबव व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर. वो हो सकता है कि आप एक बहुत हाई पोस्ट पे हो इसलिए आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं. आप राइजिंग कंपनी में काम कर रहे हो इसलिए आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं. यू आर वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30-40%. जैसे कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल द कंपनीज मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, Bacardi India Private Limited. It's a company which is growing at a great rate. 40%, 50% पे ग्रो करती है. उनका हर साल टर्नओवर 40-50% से बढ़ जाता है. तो उनके एम्प्लॉइज को खूब परक्विजिट्स मिलते हैं. They are given hefty salaries and they are given too many perquisites. तो जितने भी परक्विजिट्स मिल रहे हैं, they cannot be confused for allowance, क्योंकि अलाउंस तो वो है जो आपका पर्सनल खर्चा है. परक्विजिट्स वो है जो ओवर एंड अबव अलाउंस है. Hence the perquisite is different from allowance. Perquisites are taxable on the basis of every single limit जो हमने पढ़ी है परक्विजिट्स के अंदर. तो पहला परक्विजिट हमने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन और आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी आर अंडर 4 केसेस. 4 केसेस है, स्पेसिफिक 4 केसेस है. दे डिपेंड ऑन वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. दो चीजें हैं. सो इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्लीज स्पीक अप. टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस फीस. लाइसेंस फीस का मतलब होता है गवर्नमेंट खुद बताएगी कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस फीस. सेकंड केस इज यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. एवरीवन शुड स्पीक अप. सूरज, अरे मेरा थोड़ी एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें बोलना पड़ेगा. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देयर आर 2 सेपरेट केसेस. पहला केस कौन सा है? दैट यू ओन द हाउस, एंड सेकंड केस इज नॉट ओनर ऑफ द हाउस, और नॉट ओनर ऑफ द एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर ऑफ द हाउस. सो इफ यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, उस केस में एक्चुअल रेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज आप खुद ही ओनर हो. तो वहां पे क्या देखते हैं? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एक्सीड्स 25 lakhs, तो क्या देखा जाता है? 15% ऑफ सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल. टैक्सेबल, प्लीज रिमेंबर दिस, वो टैक्सेबल की लिमिट है. अगर 10 लाख से ऊपर है और अप टू 25 lakhs है तो क्या होगा? 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल. एंड थर्ड केस इज if it is up to 10 lakhs, then 7.5% shall be taxable. Please remember one more thing कि ये जितनी भी figures है, 25 लाख, 10 लाख और more and less, these figures are based upon the census of 2001. Census उसके बाद 2011 में भी आया है. हर 10 साल में सेंसस होता है. 2011 census has already come, has also come, but these figures are not as per 2011 census. This is as per 2001 census. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी रैपिड पेस पे ग्रो करती है. आप सोच के देखो, 2001 में जिन एरियाज में 17 लाख लोग थे, आज 2011 तक उन्हीं एरियाज में 28 लाख लोग हो गए. तो वो ऑटोमेटिकली बड़े एरिया में आ जाएगा, अप टू 25 lakhs, तो उसकी टैक्सेबल सैलरी की लिमिट भी बढ़ जाएगी. Are you able to understand क्यों करा जा रहा है? तो ऐसे कितने एरियाज होंगे जो सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट में आ जाएंगे, थर्ड से सेकंड में आ जाएंगे, जो बिल्कुल कहीं नहीं थे वो ऑटोमेटिकली थर्ड में आ जाएंगे. सो दैट दे डोंट कम अप इन दीज एरियाज, तो हम लोग सेंसस लेते हैं 2001 का. आप लोग समझ पा रहे हो? 2001 सेंसस इज टेकन. ये तो टैक्सेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, 15%. जो 10% के लिए एलिजिबल था वो 15% टैक्स पे करेगा इफ ही गेट्स इनटू द फर्स्ट कैटेगरी. सो दिस इज व्हाई वी अवॉइड दिस, और हम लोग अभी भी 2001 सेंसस की फिगर्स लेते हैं. अगर अमेंडमेंट होना होता ना तो 2012 में ही हो गया होता, क्योंकि 11 में सेंसस आ गया था. बट देयर वाज नो अमेंडमेंट, सो 2001 सेंसस आर दोस फिगर्स दैट वी स्टिल कंसिडर, अभी भी कंसिडर करी जाती है. सेकंड केस इज दैट अ हाउस व्हिच इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. अगर ओन नहीं है हाउस तो क्या किया जाएगा बताइए? Actual expenditure or 15% of salary, whichever is less. And the last or the fourth case is when accommodation has been provided by the employer in a
होटल, अगर होटल में अकोमोडेशन मिला है तो क्या देखा जाता है? एक्चुअल टैरिफ और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सैलरी का मतलब बताइए, सैलरी कहां से शुरू होता है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? बेसिक सैलरी। उसके बाद डीए अंडर टर्म्स, डीए नॉट अंडर टर्म्स नहीं आएगा, वो अलग है। थर्ड कैटेगरी बताओ। यस। फोर्थ क्या है? बोनस। फिफ्थ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। इसका मतलब जब भी आरएफए का कंप्यूटेशन करना होगा, पहले आप किन चीजों का कंप्यूटेशन करोगे? पहले आप सारे अलाउंसेस को कंप्यूट करोगे, उनका टैक्सेबल पोर्शन निकालोगे, टोटल करोगे, उसके बाद उन सबको यहां पे सैलरी के डेफिनेशन में डाल दोगे। और लास्ट कंपोनेंट क्या था? लीव सैलरी। लीव सैलरी का कंपोनेंट यहां आएगा। इट डज नॉट इंक्लूड डीए नॉट अंडर टर्म्स। याद आ रहा है आप लोगों को? और क्या क्या नहीं होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। अगर घर के साथ साथ एम्प्लॉयर हैज ऑलरेडी ऑल्सो गिवन फर्नीचर। देखिए होटल के केस में फर्नीचर अप्लाई नहीं होता, होटल इज ऑलरेडी फर्निश्ड, तभी वहां की जो लिमिट है वो 24% हो जाती है। 24% इज वेरी हाई। इस केस में हमने 15% रखी थी, जहां पे नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, वहां 24% कर देते हैं। क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी फर्निश्ड होता है। आप सोच के देखो ना कि यहां पे फर्नीचर का हम अलग से 10% दे रहे हैं। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और फर्नीचर भी दिया हो तो 10% पर annum देते हैं या एक्चुअल हायर चार्जेस देते हैं। होटल में हमने ऑलरेडी 24% करा हुआ है। क्यों करा हुआ है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी फर्निश्ड, वहां पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। सो फर्निश हाउस या फर्निश्ड हाउस मिला हो या फर्नीचर को रेंट पे लेकर दिया हो, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाती है? 10% पर annum ऑन द कॉस्ट और actual higher charges is given or is taxable in the hands of employee। तो ये सारे केसेस हमने पढ़े थे अंडर आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था लीव ट्रैवल कंसेशन और एलटीसी। एलटीसी को कई बारी याद रखिएगा लीव ट्रैवल अलाउंस भी कहा जाता है, एलटीए। ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है, हम बोलचाल में हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं। तो आप नॉर्मली सुनोगे पीपल, जो लोग एलटीसी बोलते हैं वही लोग कई बारी एलटीए भी बोल देते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस को पढ़ के आप लोग प्लीज एलटीए को अलाउंसेस का ट्रीटमेंट मत कर दीजिएगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अलाउंस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट ओनली। लीव ट्रैवल अलाउंस इट इज अ पर्सनल हॉलिडे, फैमिली वेकेशन के लिए आप जा रहे हो तो वो, और वो प्लस एक परक्विजिट है, ओवर एंड अबव इंसेंटिव है, तो अलाउंसेस का पार्ट नहीं है। नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अलाउंस भी कभी कभी बोल देते हैं। तो जो जनरल पालेंस है, आपस में लोग बात करते हैं, कई बारी लोग बोलेंगे, सरकारी एम्प्लॉइज बोलेंगे हमें एलटीए मिला है तो हम यहां जा रहे हैं। तो एलटीए का मतलब भी लीव ट्रैवल अलाउंस ही होता है। इनकम टैक्स एक्ट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो एलटीसी ही कहता है, लीव ट्रैवल कंसेशन। सो एलटीसी और एलटीए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, दिस विल नेवर बी इन द एग्जाम। एग्जाम में आपको कभी एलटीए नहीं दिया होगा। रीजन बीइंग एग्जाम इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल टर्म्स ही यूज करी जाती हैं, अनप्रोफेशनली बात नहीं करी जाती है। सो प्लीज रिमेंबर इट विल बी एलटीसी नॉट एलटीए। अगर आप एलटीए सुनो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। एंड नेवर ट्रीट एलटीए एज एन अलाउंस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एलटीसी, तो एलटीसी किस चीज के लिए मिलता है? ओनली फॉर द ट्रैवल पर्पस, ओनली फॉर ट्रैवल। आप कहीं भी घूमने जाओ, वट एवर एक्सपेंडिचर यू आर डूइंग फॉर वट एवर नंबर ऑफ डेज, उसका कोई एक्सपेंडिचर या खर्चा नहीं अलाउ होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के नाम का पैसा अलाउ हो जाएगा। दैट इज कंसिडर्ड टू बी लीव ट्रैवल कंसेशन। सो लीव ट्रैवल कंसेशन इज अवेलेबल टू whom? Only employee or employee's family? Employee's family. Who all come within the definition of family? Spouse and children, whether dependent or not, and parents, brothers and sisters, जो कि सिर्फ क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट। क्या स्पाउस के पेरेंट्स और सिस्टर्स आएंगे? क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में नहीं इंक्लूड करा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में स्पाउस से रिलेटेड कुछ नहीं है। स्पाउस की फैमिली स्पाउस खुद संभाले। अच्छा, दूसरी तरफ से देखो, अगर स्पाउस एम्प्लॉई है, वो भी एलटीसी के लिए एलिजिबल है, तो उसकी फैमिली में उसके भाई बहन और माता पिता आ जाएंगे। यस, सो इट इज इन बोथ द केसेस, बट द एम्प्लॉई हिमसेल्फ, सिर्फ उसके पेरेंट्स, उसके सगे पेरेंट्स और उसके भाई बहन, यही लोग आएंगे और कोई नहीं आएगा। क्या कजिन्स आ सकते हैं? क्या चाचे मामे आ सकते हैं? अरे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, कोई और नहीं आ सकता। इट कैन बी ओनली पेरेंट्स, फादर मदर एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर डिपेंडेंट, वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए। सो यहां पे हम लोग इन लोगों को एलटीसी प्रोवाइड करते हैं। एलटीसी कितनी बार मिल सकती है? 2 times इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 साल के ब्लॉक में 2 बारी मैक्सिमम एलटीसी अवेलेबल रहेगी या एलटीसी मिलेगी। बट द एलटीसी कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड इफ यू फेल टू यूटिलाइज द एलटीसी। अगर आप फेल हो जाते हो एलटीसी यूज करने के लिए तो वो एलटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। बट मैक्सिमम कितनी एलटीसी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? ओनली 1 एलटीसी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ब्लॉक, बट इट हैज टू बी यूज्ड विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ दैट ब्लॉक। जो ईयर है, इज इट अ फाइनेंशियल ईयर और अ कैलेंडर ईयर?
calendar year, please remember it. We are standing in a block which has started from 1st of Jan 2014 और वो 31 दिसंबर 2017 तक कंटिन्यू होगा. उसके बाद नया ब्लॉक आएगा. तो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसी ब्लॉक के अंदर ही आएंगे. 1st Jan 2014 से 31st of December 2017. ये 4 साल का ब्लॉक इसमें हम लोग चल रहे हैं. So these were the provisions. इसके बाद हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है ट्रैवल का. बिकॉज यू आर गिवन ट्रैवलिंग. क्या ट्रैवल सिर्फ डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल भी हो सकती है? डोमेस्टिक. इट्स ओनली डोमेस्टिक. अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. आप लोग कैसे याद रखोगे, भूल जाओगे आप लोग. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट exemption or whatever concession is available, it is only for the purposes of domestic travel. इसका मतलब ये है that बाकी जो अलाउंसेस या हम लोग पर्क्विजिट्स पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं कि आपने भले ही कितना भी खर्चा किया हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना मर्जी हुआ हो, बट जितनी लिमिट दी हुई है उतना हम लोग एग्जेम्पशन दे देंगे. दिस इज स्टडीड इन दी अदर थिंग्स. लेकिन यहां पे क्या डिफरेंट है एलटीए में? इट इज ओनली अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल. मान लीजिए किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल करा, कोई सिंगापुर चला गया ऑफिस की तरफ से. वहां पे सिंगापुर की टिकट 1 लाख रुपए की है. 1 लाख रुपीज होल फैमिली टिकट. बट इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते तो उसी नाम का उसी एम्प्लॉय को एलटीए मिलता 50,000 रुपीज बाय नेशनल कैरियर. 50,000 रुपए मिलता. तो ही वॉज एलिजिबल फॉर 50,000. लेकिन उसने 1 लाख रुपए का एलटीए ले लिया सिंगापुर जाके. तो क्या हुआ? क्या 50,000 का रिडक्शन देके 50,000 टैक्सेबल कर दे? ऐसा नहीं होगा. मिलेगा ही नहीं डिडक्शन. पूरा 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा. Are you able to understand? So entire 1 lakh rupees will be taxable. This is something that you have to remember. This is the only perquisite जहां पे exemption partly भी अलाउ नहीं होती है. It is not even allowed partly. So please remember this. इसके ऊपर जो चीजें हमने पढ़ी थी वो ये थी that इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मिलता है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय एयर हो तो क्या करेंगे? इकोनॉमी क्लास ऑफ द नेशनल कैरियर. अब आप जिस मर्जी कैरियर से ट्रैवल करो, आप जेट से करो, इंडिगो से करो, विस्तारा से करो, जिस मर्जी से करो, बट जो भी उसका इक्विवेलेंट उसी रूट पे नेशनल कैरियर के इकोनॉमी क्लास का फेयर होगा उतना एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा. बाकी जितना अमाउंट आपको मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा. शुड इट बी द शॉर्टेस्ट रूट? शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए. ये सेकंड कैटेगरी है. उसके बाद थर्ड क्या चीज थी? रेल. रेल में क्या देखते हैं? फर्स्ट क्लास एसी. फर्स्ट क्लास एसी फेयर का जो भी टैरिफ है उतना एग्जेम्पशन मिलेगा. और चौथा बताओ. ठीक है. इफ बाय एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय डीलक्स फेयर ऑफ व्हाटएवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय विच यू आर गोइंग. सो ये सारी चीजें आती है इसमें. तो हमने ये एलटीए डिस्कस करा, बहुत डिटेल में डिस्कस करा था. इसके बाद हमने डिस्कस करा था वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन. वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन मींस कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ लोन एट अ कंसेशनल रेट. कंसेशनल रेट का मतलब अगर मार्केट से यही लोन उठाओगे तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा. हमारी कंपनी से हमारे एम्प्लॉइज लेंगे तो हम उनको थोड़ा रेट पे डिस्काउंट देंगे. दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट फ्री लोन और इंटरेस्ट लेस लोन. सो इस केस में इफ द बेनिफिट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, क्या देखा जाता है? किस तरीके से टैक्सेबिलिटी करी जाती है? You will look at the rate of which bank? SBI, State Bank of India. State Bank of India का कौन सा रेट देखेंगे? First day of the relevant previous year of SBI. जो भी रेट होगा, whatever rate is there, उतना रेट देखेंगे. उसके ऊपर कोई बेनिफिट मिलता है तो वो टैक्सेबल कर दोगे. तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है that employer has given a car loan at the rate of 6% to employee. कार लोन दिया है 6% का. वही सेम लोन कार लोन एसबीआई में पिछले साल 8% पे था. तो एम्प्लॉय हैज बीन ग्रांटेड विद द बेनिफिट ऑफ 2%. तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा. राइट. सो दिस वाज इन इंटरेस्ट फ्री लोन. ये इंटरेस्ट फ्री लोन में हमने पढ़ा था. इसके बाद हमने पढ़ा था मेडिकल पर्क्विजिट. मेडिकल अलाउंसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स. मेडिकल पर्क्विजिट इज अलाउबल टू दोज एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग देमसेल्फ मेडिकली ट्रीटेड. अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है एंड दैट मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस जो है इज बीइंग बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो उसका हम लोग पर्क्विजिट मानते हैं और यहां पे एग्जेम्पशन या रिडक्शन देते हैं. तो मेडिकल पर्क्विजिट विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, जो मेडिकल पर्क्विजिट प्रोवाइड हो रहा है उसमें यह देखा जाता है दैट वेदर द एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ द होटल. सो देयर आर 5 केसेस जहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट का पर्क्विजिट माना जाता है. फर्स्ट केस कौन सा है? एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ द होटल, ही रन्स द हॉस्पिटल, नॉट होटल, हॉस्पिटल. सेकंड केस क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दैट हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. तीसरा केस बताओ? दैट इट इज ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी. चौथा केस? अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी. एंड लास्ट इज
एम्प्लॉई इज सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर इन पांचों में से कोई केस है तो दैट विल बी एलिजिबल, या उसको एलिजिबल करा जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग बेनिफिट अंडर मेडिकल परक्विजिट। तो क्या कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल होगा? फुल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है, फुल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। इसके ऊपर इफ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसमें प्रीमियम देना है, एंड बाय चांस योर एम्प्लॉयर इज बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ दैट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगा? इट विल बी फुली एग्जेम्प्ट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसके ऊपर अगर आप अपने दवाइयों के बिल, चेकअप्स के बिल एम्प्लॉयर को सबमिट करते हो और उसका रीइंबर्समेंट मिलता है, क्या वो भी एग्जेम्प्ट होता है? लेकिन मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन मिलता है? अप टू 15,000 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल है। क्या ये सारे प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है या उसकी फैमिली को भी एप्लीकेबल है? फैमिली को भी एप्लीकेबल है। हु इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? फर्स्ट कौन आता है? स्पाउस, children who are dependent or independent, both, and second is parents, brothers and sisters, they are dependent upon the employee. याद आ रहा है आप लोगों को? Yes. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को एग्जेम्प्ट करने का रीजन ये है दैट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम यूज होता है, इट इज यूज्ड वेरी लेस। फिर देखो, आप प्रीमियम पे कर रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब आपकी तबीयत खराब ही नहीं हुई तो यूज हुआ आपकी पॉलिसी? पॉलिसी यूज नहीं होगी। पॉलिसी तब यूज होती है जब वो इवेंट हो जाता है, राइट? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? व्हेन यू विल गेट योरसेल्फ मेडिकली ट्रीटेड, तब हेल्थ इंश्योरेंस यूज होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना कम यूज हो पाता है, तभी सारी इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, बिकॉज लेते पॉलिसी लेने वाले तो 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन यूज करने वाले 1 लाख लोग भी नहीं है। विच इज वाई एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है कि आपने कंट्रीब्यूशन करा अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, हेंस वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड वी विल एग्जेम्प्ट इट। एंड सेकेंडली, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, प्रमोट कर रही है कि आप ये चीज लो, हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, जबकि दिल्ली में भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। डेंगू इज अ वेरी वेरी वाइड स्प्रेड डिजीज इन अ सिटी लाइक दिल्ली। कितनी गंदगी है जिसकी वजह से डेंगू होता है। उसके बाद अब देखिए नई नई बीमारियां, स्वाइन फ्लू जब फैलता है 2-3 महीने रेगुलरली, इट इज सो प्रेवलेंट दैट मेनी पीपल गेट इल। अब स्वाइन फ्लू जब तक आपको नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है, जब हो गया उसकी कॉस्ट कैसे उठाओगे? हाउ वुड यू बेयर द कॉस्ट? ठीक है, ऑल दीज एबोला वायरस, अब ये जो जितनी भी चीजें हैं, वॉट एवर डिजीजेज आर हैपनिंग, इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब अगर आपको डिजीज हो जाती है, किसी को डिजीज हो जाती है एंड ही डजंट हैव द रिसोर्सेज टू ट्रीट दैट डिजीज, तो वो डिपेंडेंट होगा गवर्नमेंट पे, वो भागता हुआ जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, यहां वहां जाएगा, इन हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर बाद में बर्डन आए, इससे बेटर ये है कि आप अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। सो गवर्नमेंट इज गिविंग एन इंसेंटिव। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, इन केस सर्टन काइंड ऑफ एग्जेम्पशन इज गिवन वेयर गवर्नमेंट इज नॉट चार्जिंग एनी टैक्स फ्रॉम यू, तो आप ये समझ लो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि ये चीज लो, करो। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। कल हमने पीएफ का प्रोविजन पढ़ा था। पीएफ का प्रोविजन क्या है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% एग्जेम्प्ट है, और जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो भी एग्जेम्प्ट है। आरपीएफ के अंदर यही पढ़ा था हमने दोनों केसेस में। क्यों एग्जेम्प्ट? दोनों चीजें एग्जेम्प्ट है, ड्यूरिंग जॉब भी एग्जेम्प्ट है, रिटायरमेंट पे भी एग्जेम्प्ट है। व्हाई इज द गवर्नमेंट एग्जेम्प्टिंग इट? रीजन बीइंग दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव यू इंसेंटिव कि यू शुड ऑप्ट फॉर पीएफ। आप ही के फायदे, आप ही के काम आएगा रिटायरमेंट के बाद। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि रिटायरमेंट के बाद लोग रिटायर होकर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड व्हेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट, कौन आपका खर्चा उठाएगा? उस एज में यू नीड टू हैव अ हाउस, उस एज में यू नीड टू हैव मेडिकल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 60-65 का रिटायरमेंट, ऑब्वियसली पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक, हेल्थली वीक हो जाते हैं, तो उनको उस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ के लिए पैसे चाहिए, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए। दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू वर्क टू मच। थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। कौन सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट्स देती है, राइट? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। नाउ कमिंग टू वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ये एक्चुअल है, आपको याद आ रहा होगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी ओन सोर्सेज से है तो मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कॉस्ट जो भी आती है वो टैक्सेबल होगी। अगर बाहर से खरीदी हुई है तो जो भी बाहर को पे करा एजेंसी को वो टैक्सेबल होगा। सो दिस इज फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी हैव जस्ट एजुकेशन, जहां पे हमने अलाउंस देखा था। दिस इज नॉट अलाउंस, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, जहां पे एम्प्लॉय के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं या एम्प्लॉयर का किसी स्कूल के साथ टाई अप है, वहीं पढ़ते हैं। सो ईदर ऑफ द टू केसेस। अगर 2 केसेस हैं, अगर पहले दोनों में से कोई केस है तो क्या किया जाएगा?
मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है? 1000 पर मंथ विच इज 12,000 रुपीज पर annum. इसके ऊपर कुछ भी होगा दैट विल बिकम टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर थर्ड केस होता है तो या तो नीदर कोई स्कूल अपना भी नहीं है ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या करेंगे? पूरा अमाउंट रिसीव्ड और जो रिसीव हुआ है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। द अमाउंट रिसीव्ड एंटायरली विल बी टैक्सेबल। अर्पिता तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल नॉट बी टैक्सेबल। ऑब्वियसली जिसका एम्प्लॉय ने पैसा दे दिया है तो वो एग्जेम्पशन, वो परक्विजिट नहीं हुआ ना। फिर परक्विजिट वो है जिसमें पैसे हमारे खर्च नहीं हुए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी चिल्ड्रन एजुकेशन परक्विजिट। दिस इज सीई परक्विजिट। एक चीज मुझे याद आ रही है, हम लोग डिस्कस करना भूल गए हैं। हमने पढ़ा था ईसॉप का प्रोविजन, याद आ रहा है किसी को? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, क्या प्रोविजन पढ़ा था? ईसॉप का मतलब होता है वेयर यू आर ग्रांटिंग इक्विटी और यू आर ग्रांटिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में दे रहे हो। तो फेयर मार्केट वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपए, हमने उसी चीज को 8 रुपए में दे दिया अपने एम्प्लॉय को। कितना बेनिफिट है? 2 रुपए का। तो 2 रुपए विल बी टैक्सेबल एज बेनिफिट, परक्विजिट। याद आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद हमने पढ़ा था फ्री मील्स। फ्री मील्स आर बीइंग गिवन टू एम्प्लॉय। फ्री मील्स का क्या प्रोविजन था? 50 रुपीज पर मील, 50 रुपीज पर मील विच इज लंच, उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर टैक्सेबल। क्या इसमें चाय नाश्ता आता है? टी एंड स्नैक्स? टी एंड स्नैक्स नहीं आते? स्नैक्स, स्नैक्स क्या होता है? टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स आता है इसमें ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। और टी में क्या क्या आता है? नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, हर टाइप का जूस भी आएगा उसमें, सब कुछ आ सकता है टी के अंदर। सो टी एंड स्नैक्स विल बी एग्जेम्प्ट। इसके बाद क्लब एक्सपेंडिचर, क्रेडिट क्लब एक्सपेंडिचर, वो कितना है? हाँ, ऑफिशियल, तो फुली एग्जेम्प्ट, नहीं तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वाउचर, क्या था? यस, गिफ्ट कार्ड वाउचर। गिफ्ट कार्ड वाउचर की टैक्सेबिलिटी बताओ। कैश या चेक में अगर पेमेंट हो रही हो, नहीं, चेक या किसी नॉन कैश फॉर्म में पेमेंट हो रही हो तो क्या होता है? बियॉन्ड 5,000 इज कंसिडर्ड टू बी टैक्सेबल। और अगर कैश में हो रही हो तो फुली टैक्सेबल, वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को? इस चेक और कैश, चेक और कैश फुली टैक्सेबल है। और उसके सिवा किसी और वाउचर के फॉर्म में होता है, एनी फॉर्म अदर विच इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज टैक्सेबल बियॉन्ड 5,000 रुपीज। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, मोटर कार गाड़ी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दे रखी है। सो इफ यू हैव बीन गिवन अ कार बाय योर एम्प्लॉयर, तो उसमें क्या देखा जाता है? दैट इज द कार बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। सो वी हैव ड्रॉन टू चार्ट्स, दो चार्ट्स हमने बनाए थे। अब आप ध्यान से बिल्कुल सोच के बिना गलती करे बोलना शुरू करोगे। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की, या गाड़ी एम्प्लॉयर ने हायर करके दी है, इट इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। सेकंड केस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। टू केसेस आर सेपरेट। पहले केस की पहले बात करेंगे, ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ इट इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड द कार इज यूज्ड प्योरली फॉर ऑफिशियल पर्पस, बताओ, it is fully taxable. Whereas if it is purely for personal purpose, ऑफिशियल पर्पस के लिए होगा तो नील टैक्सेबल होगा, इट विल बी जीरो। और पर्सनल पर्पसेस के लिए होगा तो टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी मेंटेनेंस के लिए होता है। सेकंड क्या है? शॉफर अगर ड्राइवर भी होता है। एंड थर्ड इज 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, अगर उसने हायर पे लिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ कार। याद आ रहा है आप लोगों को? ये दो केसेस थे सेपरेट। तीसरा केस था पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है ना ये। क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें? व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन? सृष्टि, सृष्टि नाम है तुम्हारा? छोड़ दो चूहे को, बताओ। ओनर ही कार देगा ना, वो कौन कार देगा? ठीक है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? नील तो कहीं भी नहीं होगी।
अगर पेट्रोल एम्प्लॉय बेयर करता है तो क्या करोगे आप? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? सब कुछ डाल दो इसमें, सारी लिमिट्स डाल दो, 1800, 2400, 600, 900, सारी लिमिट्स डाल दो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ऑफिशियल एक्सपेंडिचर एक चीज में नहीं। सो हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। इफ द पेट्रोल और द मेंटेनेंस ऑफ द कार इज बीइंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर देता है तो उस केस में क्या देखा जाता है? बिग कार और स्मॉल कार 1800 और 2400 पर मंथ, डिपेंडिंग गाड़ी कौन सी है, अप टू 1600 सीसी या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज थी। इफ द कार इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इफ द कार इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉय, 600 पर मंथ एंड और 900 पर मंथ, डिपेंडिंग छोटी या बड़ी गाड़ी है। और चारों ही केसेस में इफ शॉफर इज आल्सो गिवन तो उसकी टैक्सेबिलिटी होगी 900 पर मंथ, व्हिच विल बी इन एडिशन। तो ये वाला केस है वेयर ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। सेकंड केस है ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉय। बताओ, फुली ऑफिशियल यूज, प्योरली ऑफिशियल यूज के लिए आपने गाड़ी यूज करी है तो उसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी? निल, जीरो। प्राइवेट पर्पसेस के लिए होगा तो क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यस, इट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद क्या देखोगे? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पे टैक्सेबिलिटी कैसे देखी जाती है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस ऑफिशियल एक्चुअल और लिमिट 1800 और 2400 पर मंथ, विच एवर इज हायर। याद आ रहा है आप लोगों को? भूल तो नहीं गए हो? तो जो भी हायर आता है और जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है उसको हम लोग टैक्सेबल करते हैं इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूल ऑफ कार्स का। पूल ऑफ कार्स का मतलब होता है इफ मोर देन वन कार हैज बीन गिवन टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को 2 गाड़ियां दे दी है, इफ ही हैज बीन गिवन 2 कार्स, तो टैक्सेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? वी विल टेक 2 केसेस और 2 ऑप्शंस। पहले केस में लेंगे कोई सी भी एक गाड़ी प्योरली पर्सनल है और सेकंड कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और दूसरे केस में उल्टा करोगे, वाइसी वर्सा। जिसमें भी टैक्सेबिलिटी कम आएगी उसी को आप क्या करोगे? उसको, उसी गाड़ी को फिर पर्सनल मानोगे और अगली गाड़ी को पार्टली पर्सनल पार्टली प्राइवेट मानोगे, बिकॉज दैट इज बीइंग गिवन एज एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉय। वो ऑप्शन एम्प्लॉय को दिया जा रहा है कि जिसमें टैक्सेबिलिटी कम है वो ऑप्शन चूज कर लो, दैट इज अपॉन द एम्प्लॉय। यस, हाँ, दोनों केस करके आने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों केस करके आने हैं। दोनों ऑप्शन से सॉल्व करना है और दोनों करके आने हैं और दोनों की टैक्सेबिलिटी बतानी है। जो बेनिफिशियल है वो कर, जैसे यहां पे सॉल्व करा हुआ है सेम, बिल्कुल डिट्टो। 3 कार्स अगर है, भाई कौन सा एम्प्लॉयर 3 कार्स देता है? अगर 3 कार्स है तो एक कार प्योरली पर्सनल, दोनों गाड़ियां बाकी की पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। तुम फिर 3 केसेस से सॉल्व करना, फिर तुम्हें 3 केसेस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, 9 केस बनेंगे फिर। ठीक है, तुम करना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में। करोगे आकांक्ष? बिल्कुल ठीक, एक ही क्वेश्चन करना उस दिन तुम पेपर में, 3 घंटे में एक क्वेश्चन होगा। Now coming to the third part, retirement benefits. Retirement benefits are those which are available to people who are about to retire or who want certain kind of benefit in retirement. First case or first type of retirement benefit was pension. Was pension. तो बोलना शुरू करना। Pension is of 2 types. 2 तरह की pension है। First type of pension कौन सी है? Uncommuted pension. Uncommuted का मतलब क्या होता है? Which is not changed into anything else, that is uncommuted pension. Uncommuted pension का treatment क्या रहता है? Taxable for all in all cases the entire amount. Government non government से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, taxable for all है। Second is commuted pension. Commuted का मतलब क्या होता है? Something which can be changed into something else. It can be commuted. वो किसी और चीज में हो सकता है। इसमें 2 सेपरेट केसेस होते हैं। फर्स्ट इज वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा? It will be fully exempt for all government employees. Second case is non-government employee. Non-government employees में फिर 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस कौन सा है? That you are getting gratuity or you are not getting gratuity. If you are getting gratuity, तो taxability कैसे देखी जाती है? 1/3 of the total amount of pension that he is entitled to receive. टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन है। तो कम्यूटेड वैल्यू आपको दिया होगा, यस, कम्यूटेड वैल्यू विल बी गिवन। उस कम्यूटेड वैल्यू से आप 100% निकालोगे और उसका 1/3 1/3 निकालोगे। दैट 1/3 अमाउंट, वो 1/3 अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट या एग्जेम्प्ट अमाउंट?
एग्जेम्प्ट अमाउंट, फिर उसमें से जितना आपने कम्यूट करवाया है उस कम्यूट से उसको माइनस करोगे एंड वॉट एवर विल बी द रिमेनिंग बैलेंस दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। याद आ रहा है आप लोगों को? इफ द पर्सन इज नॉट टेकिंग ग्रेचुटी, 1/2 of the total amount of pension which he is normally entitled to receive. This is the treatment of pension. Second case. Second type of retirement benefit is death cum retirement gratuity. Gratuity is available only to those employees who work for at least 5 years, जो कम से कम 5 साल काम करते हैं उनके लिए अवेलेबल रहता है। सो ग्रेचुटी इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर एसोसिएशन विद द एम्प्लॉयर। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्पशन देता है विद सीइंग वेदर यू आर कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और नॉट। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो तो एग्जेम्पशन शैल बी लीस्ट ऑफ। फर्स्ट केस क्या है? 15/26 और 15/30, 15/26 days of last drawn basic and DA, and for every completed year of service क्या fractions consider करते हैं? Yes, only in excess of 6 months। याद आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद सेकेंड लिमिट क्या थी? 10 लाख रुपीज। ग्रेचुटी इज द ओनली रिटायरमेंट बेनिफिट जिसकी लिमिट सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा लिमिट 10 लाख रुपए है। सो ग्रेचुटी में 10 लाख रुपीज आ जाएगा। एंड थर्ड इज अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अब एक पॉइंट जो आप लोग याद रखोगे, इन केस एम्प्लॉई से ग्रेचुटी के नाम का कोई भी अमाउंट रिकवर किया जाता है, अगर ग्रेचुटी आपने पहले तो काटी एम्प्लॉय के नाम, एम्प्लॉय के अकाउंट में ग्रेचुटी डाली, उसके बाद उसको देने से पहले यू हैव रिकवर्ड सम अमाउंट, कि आपकी 5 लाख रुपए की ग्रेचुटी बनती है, यू गिव मी 1 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 5 लाख। सो इफ एनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई, दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज। प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहां पे ग्रेचुटी का जो ट्रीटमेंट है, इट इज, ये देखिए 10 lakhs के नीचे लिखा है, if gratuity received from previous employer was exempted amount shall be deducted from 10 lakhs। ये हमने केस पढ़ा था। अगर यहीं पे रिकवरी कर ली जाती है तो 10 lakhs में से वो भी माइनस हो जाएगा, बिकॉज वो तो बेनिफिट मिला नहीं एम्प्लॉय को। जितना बेनिफिट मिलेगा उतना ही आप बेनिफिट प्रोवाइड करोगे ना। जो बेनिफिट नहीं मिला, जो पैसा आपने उससे वापस ही ले लिया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ बेनिफिट। सो दिस इज अ केस वेयर एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सैलरी की डेफिनेशन क्या है? लास्ट ड्रॉन बेसिक एंड डीए, मतलब बिल्कुल आखिरी महीने की सैलरी लेंगे and DA of that particular month. Second case is if employee is not covered by payment of gratuity act. If employee is not covered by payment of gratuity act, बताइए क्या देखेंगे? 15/30 of average salary for every completed year of service. उसमें fractions consider करते हैं नहीं करते हैं? Fractions are ignored. Second limit is 10 lakhs and third is actual amount received. Salary की definition बताइए। Basic salary plus DA अंडर टर्म्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। सो जो भी सैलरी आती है इसको आप एवरेज करोगे 10 महीने का और वहां पे लगाओगे। एवरेज करेंगे एवरेज सैलरी, यस एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स। सैलरी की डेफिनेशन से आ गया तो वही सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा। सो दीज वर द 2 सेपरेट केसेस अंडर ग्रेचुटी। इसके बाद हमने तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट डिस्कस करा था, लीव सैलरी। वेदर एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर लीव सैलरी और नॉट, वो डिपेंड करेगा उसके पास लीव्स है कितनी। सो इफ एन एम्प्लॉय इज गेटिंग लीव सैलरी, तो लीव सैलरी में पहली चीज देखेंगे कि किस टाइप के एम्प्लॉय को मिल रही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो क्या वो टैक्सेबल है? फुली एग्जेम्प्ट। इफ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग, तो क्या उसमें एक ही केस है या 2-3 केसेस बनते हैं? अरे 4 केस नहीं है, वो 4 लिमिट्स है। केसेस कितने हैं? केस एक ही है। एग्जेम्पशन इज द लीस्ट ऑफ। फर्स्ट केस के फर्स्ट लिमिट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड इज 3 लाख और 3,50,000, 3 लाख रुपीज, दिस इज द लोएस्ट। लीव सैलरी में लोएस्ट है 3 लाख रुपए। तीसरी लिमिट क्या कहती है? सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन बताइए। बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। और चौथी लिमिट टू कैलकुलेट व्हाट आर द एंटायर लीव्स अवेलेबल विद द एम्प्लॉय। सो स्टेप 1 में क्या देखते हैं? लीव्स एक्चुअली अलाउड और 30 days whichever is less per year whichever is less। तो ये आप देखोगे, कंप्यूट करोगे इसके बेसिस पे कि लीव्स कितनी अलाउड होती है। स्टेप 2 में क्या देखेंगे? लीव्स एक्चुअली टेकन, लीव्स जो उसने एक्चुअली ली है। तो लीव्स एक्चुअली टेकन है, बैलेंस होगा लीव्स अनअवेल्ड, अनयूटिलाइज्ड, नॉट यूज्ड, किसी भी नाम से बोलो, वो लीव्स नहीं ली गई है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बैलेंस। सो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इनटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, that will give us the value of leave salary या value of perquisite, value of retirement benefit जो उसको मिला है। उसको हम लोग
उसको हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी के तीनों लिमिट्स के साथ। चारों में से जो लीस्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी हिज एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो ये सारी एग्जेम्पशंस आ रही है, ऑल ऑफ देम आर एग्जेम्पशंस। आपसे हर क्वेश्चन में पूछा रहेगा व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल, तो एग्जेम्पशन आने के बाद उसको माइनस करना मत भूल जाना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, भूल जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। यू हैव टू लुक एट द टोटल अमाउंट, एग्जेम्पशन के बाद उसको माइनस करके आपको टैक्सेबल अमाउंट दिखाना है हर केस में। लीव सैलरी की बात हमने क्या पढ़ा था? VRS, compensation on voluntary retirement scheme. VRS. So VRS, if an employee opts for something like voluntary retirement scheme, यानी कि वो voluntarily अपनी retirement date से, official retirement date से पहले retire हो रहा है, तो automatically he will be eligible for some kind of compensation. उन्हें जो compensation मिलेगी, that will be considered to be the compensation on VRS or compensation available on voluntary retirement scheme. Exemption will be the least of what? अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड लिमिट क्या है 5 lakhs एंड थर्ड इज जितने साल काम करा है, जितने साल सर्विस करी है इनटू 3 month सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें कितने मंथ्स होते हैं टोटल मंथ्स, दोनों में से whichever is less that will be given as exemption. सैलरी की डेफिनेशन बताइए। बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो सेम आती जा रही है हमारी सैलरी की डेफिनेशन। दिस इज कंसिडर्ड टू बी ट्रीटमेंट फॉर VRS। क्या VRS गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है? अरे क्या सोचने लग गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है? क्या हो गया तुम तीनों को पीछे? शुभम कुछ नहीं बोला तुमने। अरे अभी तुम इतने सेंटिमेंटल कैसे हो गए? तुमने नहीं बोला है लेकिन अभी नहीं बोल रहे थे तुम। सो एग्जम्पशन इज अलाउड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। एग्जम्पशन शैल बी अलाउड ओनली टू, ये देखिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एनी कंपनी में पब्लिक प्राइवेट दोनों आते हैं। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए भी है, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी एंड यूनिवर्सिटी, IIT, नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबके लिए अवेलेबल है। सो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इज कवर्ड। यहां पे कवर्ड क्या नहीं है? फर्म कवर्ड नहीं है, सोल प्रोप्राइटर कवर्ड नहीं है, ये सब लोग कवर्ड नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सारे लोग यहां पे इंक्लूड हो जाते हैं।